I thought today let me share some knowledge with you. Normally, our satsangs, 40 minutes, about 20 to 25 minutes, we sit quietly. And about 15 odd minutes, I talk. And I always generally talk about love. And I tell you that love is not understandable, love is not definable. So then, if something cannot be understood, cannot be defined, then what are we doing? We are experiencing something which is not definable. But then I might share with you today that the reality is beyond even experience. It's beyond experience even. Then what are we doing in life? So then what are we doing with life is called knowledge. So let me give you knowledge. When I went to my Guruji, this first day he told me, you cannot understand me. You cannot know me. Well, then what am I here for then? If it is impossible, then what am I doing? Impossible means impossible, not difficult. Impossible. So then what is it that I'm going to get from you? No, I'll provide you an environment where you would know yourself. And when you know yourself, you would know me also. So don't try to know me, try to know yourself, who you are. The day you know who you are, because what you think you are is not the truth. So the day you start getting glimpses of who you are, things will start becoming clearer and clearer. Now, clearer means what? You will start seeing light. Because light is required to see things. Without light, how can you see things? If you switch off all the lights, you won't be able to see anything. So light is required. Now, whatever I'm telling you is knowledge, but what is the source of knowledge? Source of knowledge is reality. You are the source of knowledge. You are not just knowledge. You are trying to find out who you are. Each one of us, knowingly or unknowingly, is trying to find out who am I? What am I doing here? Why have I come into human life? Knowingly or unknowingly, we are all trying to do that. आवारा हूं या गर्दिश में हूं आसमान का तारा. Very profound words, like a sutra, like a shloka. Nobody understands it, but somebody who wrote it must be understanding it after all. And could he ever make anyone understand? Cannot. Avara means I'm astray, lost, or am I circling around? Lost means I don't know the way, or I'm just circling around something which I might someday find. Earth circles around the sun, electrons circles around, orbits around the nucleus, with the hope that someday it will fall into the nucleus. Someday the earth will fall into the sun. That's why it's circling around, orbiting around. The whole of this creation is orbiting around something. Don't know what that something is. So that scientists call it a pole star. Pole, there has to be a pole when somebody wants to rotate around. So what is a guru? Is like a pole
around which you orbit. So that finally there's something scientifically called entropy. Entropy means energy is required to rotate. But how long can you keep rotating? Energy will become lesser and lesser and lesser and lesser and lesser and lesser, and you will fall into the center, isn't it? You'll reach your reality. So, our Shastras, before science ever had begun, we were meta-scientific, metaphysical people, Indians, Bharatiyas. We called it Dhruv Tara. ध्रुव था ध्रुव का स्टोरी भी हम सबको पता है ध्रुव was one of the greatest, or called him the greatest bhakta, who was blessed by God to become the pole star around which the entire creation will orbit. So Dhruv Tara, and scientists call it a pole star. Just the English word is changed. Even in Hindi it's called Dhruv. Dhruv also means pole. So bhakti or love. Again, the word comes love. Bhakti or love is an orbit around the Guru, around the pole, till you merge with the Guru. And the Guru is inside you, your own reality. So if it cannot be understood, then why the Shastras? Why this talk? It helps, definitely helps. Be it Sri Guru Granth Sahib, or be it Guru Nanak himself, or be it Satya Sai Baba, or be it any Guru, be it Jesus Christ, be it Prophet Muhammad, if you are wise enough to interpret the existence of the Guru, tad japaha tadarth bhavanam. ऐसे ही भेड़ चाल नहीं, आवारा नहीं, जान लो कि you have come for an aim in this life. You're orbiting around the reality of your own self. Chitta vritti. Chitta vritti are not aimless vrittis. They are meaningful. Whatever you are thinking, whatever I'm telling you is chitta vrittis. Pramana, viparya, vikalpa, nidra, smriti. They are all orbiting around pole star called Dhruv Tara, the Guru. Everything which you are doing is you're waking up, you're sleeping, you're eating, everything, your professional work, whatever you're doing is finally गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, सैयारा हूं. हम सुपरफिशियली फोनी हो चुके हैं. फोन को देखते देखते हम फोन को देखते देखते फोनी हो गए. फोनी क्या होता है? कोई सब्सटेंस नहीं है, जस्ट सुपरफिशियल. हाउ आर यू? आई एम फाइन. ऐसे ही जिंदगी निकल रही. ग्रेविटास नहीं है. ग्रेविटास सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि फोन हैज मेड अस फोनी. The TV has made us an idiot. TV is called an idiot box. So phone has made it phony, and TV has made us all idiots, because अपनी कोई सोच ही नहीं है. वो सारा दिन किसी शाहरुख खान को देख रहे हैं. शाहरुख खान is very wise and good, great man. But why are we not? Why are we looking at others? Why not rotate around one nucleus? गुरमुख होए ता एक को जाने, सर्व ध्यान में एक ध्यान. अगर शाहरुख के अराउंड ही घूमना है तो चलो एक ही फिर शाहरुख ही होना चाहिए. फिर और नहीं देखना चाहिए कुछ भी.
You will reach the truth. You will reach the truth. So वो truth जो है वो ध्रुव है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर छुपा हुआ प्रेम है। अब प्रेम एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा वर्ड है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं। नूर की बूंद है जो सदियों से बहा करती, दिमाग से छू के, हाथ से छू के इस रिश्तों का नाम ना दो। इसलिए गुरु बोल दिया गया। गुरु भी कोई हमने एक आदमी बना लिया, बट गुरु तो एक शब्द इसलिए बनाया गया कि वो अभी भाई नहीं है, बहन नहीं है, जेंडर नहीं है, ओल्ड नहीं है, यंग नहीं है, बिकॉज कालेन अनवच्छेदात। हमने उसको सत्य साई बाबा बोल दिया, किसी ने उसको श्री श्री रविशंकर जी बोल दिया, किसी ने उसको गुरु नानक जी बोल दिया, किसी ने उसको जीसस बोल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम देने में, नाम तो देना ही पड़ेगा, मगर वो नाम से परे है, इस नामों से परे है वो। गुरु मीन्स गुरुत्व आकर्षण, मीन्स मैग्नेट around which everything moves. Everything moves. Your chitta vrittis are moving around that pole star. You are a diamond in the sky. You are Asman ka tara. You are light itself, searching for your own light. Each one of us. But yes, one pole is required around which you can move, which you can orbit around. So orbit around one Jesus Christ, one Sri Krishna. I was waking up my son in the morning. I said, Utho, Utho, mere lal, Utho, Madan Gopal. मदन गोपाल, मैंने पूछा उससे क्या होता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को कहाँ पता है ये सब। He says, मेरे को पता है मदन गोपाल मीन्स श्री कृष्ण। I said, फिर कृष्णा क्या होता है? कृष्णा मीन्स मैग्नेट। कृष्णा मीन्स दैट विच अट्रैक्ट्स यू, आकर्षण, जो आपको खींच सके अपनी तरफ। जब खींच जाओगे अपनी तरफ तो एंट्रोपी हो जाएगी। एंट्रोपी इज ए साइंटिफिक वर्ड कि आपकी एनर्जी, जो सारी की सारी एनर्जी ऑर्बिट में वेस्ट नहीं हो रही, ऑर्बिट में लगी हुई है, वो धीरे धीरे पोल स्टार में गिर जाएगी। यू विल मर्ज विद कृष्णा, you will merge with Krishna, you will merge with Nanak who is sitting inside you. Don't waste time only going to पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने, तेरा पता नहीं मिलता ऊंज नाम ता लेने। वेखी नहीं वेखी अड़िए, अंदर बोले कौन, बाहर जिन्हां नूं लभदी है किते ओही सज्जन ना होण। वेखी नहीं वेखी अड़िए, ये stubborn one, ये foolish one, क्या इधर उधर भटक रही है। सोल, ओ beloved soul, ओ माई वेरी ओन वन, कहाँ भटक रही हो। वेखी नहीं वेखी अड़िए, अंदर बोले कौन, अंदर कौन बोल रहा है? वो हूं मैं बाहर से तो सिर्फ याद करवाने आया हूं कि तुम कौन। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कौन हो, उस दिन सारी सर्च खत्म हो जाएगी, और उसको पाने की कोशिश के लिए प्रेम में समा जाओ। सो आई से कि मेरे अंदर ये क्लैरिटी कैसे आ गई। क्लैरिटी, देयर इज नो क्वेश्चंस, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस इन लाइफ। दे से लाइफ इज अ मिस्ट्री। It's stupid. You've never tried to solve this mystery. It is not a mystery. Try to solve this mystery. It's no more a mystery. I have no questions. I'm telling you from my heart. There's absolute clarity. So, kaise? I have a pole star around which I move, and I have taken the help of all the Shastras. So, if I say Shastras, तो it is unkind of me to say कि Shastras समझ नहीं आ सकते।
नहीं, कोशिश करने से आ सकते हैं, ऐसी क्या बात है, जरूर आ सकते हैं। मगर जो मैं हूं, जो आप हैं, वो हैं तो समझ के परे ही। इसका मतलब ये नहीं कि समझने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद धीरे धीरे आप समझ के परे चले जाओ। इवन अथ योग अनुशासनम, चलो तुम्हें बताएं योग क्या होता है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, तुम चित्तवृत्तियों से परे चले जाओगे। तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, ये समझने की जरूरत है। तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, तब तुम भगवान का स्वरूप हो जाएगा तुम्हारा। स्वरूप का मतलब होता है तुम भगवान के जैसे हो जाओगे। भगवान तो नहीं हो जाओगे, भगवान के जैसे हो जाओ। तो फिर भगवान क्या है? वो भी तुम ही हो, मगर फिर तुम समझे नहीं ना जा सकते। फिर जो समझे जा सकोगे वो भगवान के जैसे होगे, वो सत्व होगा, मगर सत्य नहीं होगा। सत्य तो मैं बोल नहीं ना सकता, सत्व मैं बोल सकता हूं। सत्य के जैसा मैं दिख सकता हूं, मगर सत्य तो दिख नहीं ना सकता इन आंखों से। दैट्स व्हाट माय गुरुजी टोल्ड मी, कि तुम मुझे जान नहीं सकते हो, क्योंकि जब तुमने जान लिया तो तुम जानने से परे जा चुके होगे। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। हरे राम, जब मैं राम बोलता हूं तो इट्स अ कोड वर्ड, जब मैं वाहे गुरु बोलता हूं तो इट्स अ कोड वर्ड। कोड वर्ड तो फिर दो लोगों के बीच में ही होते हैं। Code word means only two people know what are they meaning, isn't it? That's why code words have come up. So कुछ कुछ जब आपको भी होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ कुछ होता क्या है। What is this कुछ कुछ होना? जब होगा तभी तो पता चलेगा। So all these are code words. पर शास्त्रों की हेल्प जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। धीरे धीरे लाइट की झलक मिलती रहेगी, एंड दैट विल कीप अट्रैक्टिंग यू। जो चीज अट्रैक्ट करती है आपको, उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उसको कृष्ण बोलते हैं। सो धीरे धीरे राधा के दर्शन होंगे, गोपियों के दर्शन होंगे, गुरसिक हो जाओगे, गुरमुख हो जाओगे। इन वर्ड्स के मीनिंग अपने आप एक्सपीरियंस होंगे। हरे राम, हरे कृष्णा। अदरवाइज वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अदरवाइज तुम वृत्ति बन के आवारा ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। आवारा हूं या गर्दिश में हूं, मगर हूं तो आसमान का तारा हूं। इतना तो जान लो कि हो तो आप आसमान के तारे हो, और आसमान के तारे ऐसे ही अस्ट्रे तो घूम नहीं रहे, किसी तो चीज के अराउंड ही घूम रहे हैं। ये पूरी सृष्टि गोल है, गोल चक्की है। गोल चक्की के अंदर सब पाप पुण्य पिस जाएंगे, और जो बच जाएगा सगल तत्व में तत्व ज्ञान, तो भक्ति ही बच जाएगी, प्रेम ही बच जाएगा, कुछ बोलने बोलने के लिए रह ना जाएगा। इसलिए जब मैं कह देता हूँ कि कुछ बोला तो जा नहीं सकता, तो आप समझते हैं कि बोला ही नहीं जा सकता तो फिर हम कर क्या रहे, समझा ही नहीं जा सकता तो हम कर क्या रहे। नहीं, जरूर कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरे अंदर लाइट आ गई और प्रोसीजर भी मैंने बता दिया, तो आपके अंदर क्यों नहीं आ सकती? We all are made of the same substance.
There is no difference between a Buddha and a Mahavira. We are all the same. Just conviction is lacking. We think that Buddha was born 3000 years back. Buddha is there today also. ऐसे ही सब नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे. सब के सब जो भी आप जिसको भी आप याद करते हो, श्री राम कितने लाख साल पहले आए थे, नहीं नहीं, वो आज भी हैं. हनुमान जी आज भी हैं. जिसको भी आप प्रेम करना चाहो वो आज भी है. वेट मत करते रहो कि व्हेन विल जीसस कम अगेन. जीसस इज इन योर हार्ट. जीसस इज नॉट गोइंग टू बी बॉर्न इन सम लैंड. वाई जीसस? अभी तो हम सब लोग सत्य साई बाबा दोबारा कब आएंगे उसकी भी वेट करते रहते. जो एक बार आए उसको काफी नहीं है क्या? दोबारा क्यों आएंगे? दोबारा तो आपके हार्ट में आएंगे ना, आपके दिल में आएंगे ना. और ये सब वर्ड्स जो है ना, ये सब के सब आपको उतना ही भ्रमित करते हैं जितना ही आपके मार्गदर्शक है. आपके दिल में आएंगे. अब दिल भी ढूंढेंगे कहाँ है. ये वाला दिल नहीं, दिल कहीं और ही होता है. हरे राम. ये वाला दिल तो पंप है बस एक. कभी भी हम ट्रांसप्लांट करके नया भी लगा सकते. ये दिल नहीं है. एक वर्ड और भी है, स्वाधिष्ठान. अभी स्वाधिष्ठान कहाँ होता है, कहाँ पता है किसी को? क्योंकि ये शब्द बोले नहीं जा सकते. कई ऐसे भी हमारे थिंकर्स आए हैं, ओशो, जो सब शब्दों के मीनिंग बोलने की कोशिश कर देते हैं, फिर वो सेक्रेड नहीं लगते, वो थोड़े ब्लेटेंट लगते हैं. they lose their sacredness if we become too blatant and blunt. कीचड़ के अंदर ही कमल खिलता है. इसका मीनिंग नहीं समझ आया. कौन सा कमल, कौन सा कीचड़, नहीं ना समझ आया. सो ये सब सेक्रेड सीक्रेट वर्ड्स हैं. ऊंद कमल जिस होए प्रकाशा, तिन सदा निरंजन डिठा जियो. उसको हमेशा लाइट ही लाइट दिखती है. मगर ये कहाँ से बने लैंग्वेज? ये बियॉन्ड लैंग्वेज से ही लैंग्वेज निकलती है. जो कुछ भी गुरु नानक बोल रहे हैं, दे आर ऑल कोड वर्ड्स सेड इन अ वेरी सेक्रेड लैंग्वेज. Osho would say the same things in a blunt way, and it lose its sanctity. So consider me to be in between. I am not using any unsacred words because हर एक आदमी के अंदर कुछ sacredness होती है. Everybody loves to be sacred and pure. If I use some dirty words, it'll look stupid. So ये जो sacred words हैं, इन सब के अंदर एक कुछ कोड वर्ड्स हैं, इनके अंदर कुछ मीनिंग छुपा हुआ है. उस मीनिंग को आप समझ जाएंगे. नानक दिया गुजियां रमजान रमजानू बेसमझ जमाना नहीं जात सकता. आप ढूंढने की कोशिश करिए, आपको सब कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा. पूरी श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक्सपीरियंस हो जाएगी. एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष का एक्सपीरियंस होगा. ऐसे ही बोलते ही नहीं रह जाएंगे आप कि आनंद पे मेरी माए सतगुरु में पाया. हाँ, सतगुरु तो पाया, सहज से थी. वो सहज के दर्शन होंगे आप ही के अंदर. सो कोशिश करिए, आप आवारा नहीं हैं, बस गर्दिश में हैं और आसमान के तारे हैं. यू आर डायमंड्स इन द स्काई. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. बस एक ध्रुव तारा ढूंढो और उसके अराउंड ऑर्बिट करते रहो और धीरे धीरे अपने आप को जानने की कोशिश करो.
God is knowledge, but yes, He is beyond knowledge also. He is light. He is light. जिस प्रकाश के कारण आप देख पा रहे हो, जिस समझ के पीछे एक समझ है जिसके कारण आप समझने की कोशिश कर पा रहे हो, you are that, and you definitely can experience yourself. जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे तब जानोगे दृष्टा दृशि मात्र प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा जो रियलिटी है, जो आप हैं, वो लगता है कि समझने की चीज है, मगर वो समझ से परे है। वेल, फिर भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समझ के परे कैसे जाएंगे? If you do not read Vedas, how would you know what is Vedanta? Vedanta means end of all knowledge. End of knowledge, yes, through knowledge only you can end knowledge. Diamond alone cuts diamond. So जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी फॉल्स नॉलेज को काट देगा, और जो रह जाएगा वो आप हैं। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाएगी, कुछ भी पूछना नहीं रह जाएगा, बस आप होंगे। विशेष दर्शिना आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। जब दर्शन हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हरे राम, हरे कृष्ण।